Hello everyone, my name is Prince Kumar and I'm a student of BSc IT second year from Simage Group of Institution. Today I am going to explain a presentation of operator overloading in C++. So the whole session will be 75% of practical and 25% of approximate 25% of theoretical paper. So I will be explaining this presentation English as well as Hindi also. So let us understand with an example. Uh, I am created one class called operator. Uh, First is a void in function and second is void out function. Void in function for input the user from the input the data from user, and void out function for the showing the output. Now if we are going to add, and we are created three object of the particular operator class, object 1, object 2 and object 3. In object 1 we are going to supply with the help of in function 12 and 8, and with the help of object 2 we are going to supply 6 and 4. Now at that point of time, if we are want to add the operator 1 plus object 1 plus object 2, then it will show an error. Why this will show an error? Compiler will go at that line number 18. Then it has only meaning to that, for that compiler can add the only primitive data type at this point of time, because this have no any at this point of time it has only meaning for that it can add only two primitive type of data types. It can be float, it can be integers. So let's see. Operator overloading is compile time polymorphism which the operator is overloaded with the help of user defined functions. So let us see what is operator overloading with an example. So now I am created class 1. In the public section there is two variable int with int and b. This is integer type, and void in function for input to take input data from the user, and void out function for showing the output. And here I am created three object of the particular A class, object 1, object 2 and object 3. Object 1, in the object 1 I am assigning with the help of in function 4 and 5. Object 2 I am assigning with the help of in function 7 or 5. In that point of time यहाँ पर हो ये रहा है कि ऑब्जेक्ट वन वो अपने सम फंक्शन को कॉल कर रहा है. ऑब्जेक्ट 1 अपने सम फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसमें ऑब्जेक्ट 2 एज एन पैरामीटर पास हो रहा है. फिर से ऑब्जेक्ट 1 है, उसमें ऑब्जेक्ट 1 अपने सम फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसमें ऑब्जेक्ट 2 पास हो रहा है, और जो भी ऑब्जेक्ट 1 रिटर्न करेगा वो ऑब्जेक्ट 3 में जाके असाइन होगा. अगर सम फंक्शन को कॉल कर रहा है तो हमारे क्लास में एक फंक्शन सम नाम का एक फंक्शन भी होना चाहिए, ऑब्वियसली है. जब यहां से आप हमारा वैल्यू सप्लाई हो रहा है, हमारा पैरामीटर सप्लाई हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट टाइप का है. किस टाइप का? ए टाइप का. तो ऑब्वियसली हमारा जो जिस टाइप का यहाँ पे वैल्यू सप्लाई होता है उसी टाइप का हमारा डेटा टाइप भी होना चाहिए. तो हमने ए टाइप का यहाँ पे पैरामीटर लिया है, और ये हमारा सम फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न भी करेगा. अगर हम मान के चल रहे हैं कि हमारा कोई फंक्शन इन टाइप का अगर वैल्यू रिटर्न करता है तो हम लोग यहां पे लिखते हैं इंट. अगर कोई फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते हैं तो यहां पर होना चाहिए था वॉइड. लेकिन हमारा सम फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा? तो वो होगा ए टाइप का. हमारा फंक्शन इस केस में वो ए टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है. तो हम एक टेम्पररी लिए हैं ऑब्जेक्ट जो क्या करेगा, वो टेम्प का ए जो है, टेम्प का ए में ये ए जो लिखा गया है वो ऑब्जेक्ट 1 का ऑब्जेक्ट 3 का ए क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट 1 का जो ए है उसमें क्या करेगा, ऑब्जेक्ट 2 का जो ए है, ये जो सी लिखा गया है, एक मिनट,
ये जो ऑब्जेक्ट 1 है ये क्या किया, यहां से कॉल हुआ, उसके बाद ये जो ए है टेम्प के ए में हो रहा है, टेम्प का सॉरी ऑब्जेक्ट 1 का ए प्लस ऑब्जेक्ट 2 का ए को ऐड कर दिया, उसके बाद टेम्प के बी में ऑब्जेक्ट 1 का बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 का बी को असाइन कर दिया, उसके बाद सिंपली रिटर्न कर दिया गया टेम्प को, जैसे ही रिटर्न किया गया। लेकिन यहाँ पे हमारा हो ये क्या रहा है, मेरा ये समझाने का पर्पस ये था कि आप इस फंक्शन से अगर इसको समझाए तो थोड़ा इजिली से समझ पाएगा, लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हमारा C++ लैंग्वेज ये कहता है कि आप ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, मतलब ऑपरेटर का जो पहले से एक मीनिंग डिफाइन है, कोई भी ऑपरेटर हो जो सी लैंग्वेज में था, जो सी लैंग्वेज में कोई एक वैलिड ऑपरेटर था प्लस माइनस, उसको आप अपने हिसाब से एक नया डेफिनेशन दे सकते हैं। तो पहले से ऑपरेटर का मीनिंग ये था कि वो सिर्फ प्रिमिटिव टाइप को ऐड कर सकता है, ये प्लस ऑपरेटर के केस में। तो आज हम यहां पे उस प्लस ऑपरेटर को एक नया डेफिनेशन देने जा रहा है। तो हमारा ये प्लस है, उससे पहले हम ऑपरेटर से कीवर्ड लगाएंगे और हम प्लस ऑपरेटर ओवरलोड करने जा रहे हैं, तो प्लस ऑब्वियसली यहां पर भी ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। यहां पे हो क्या रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट 1 कॉल हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 एज एन आर्गुमेंट पास हो रहा है और यहां पे उसको टेक कर रहा है, यानी यहां पे ये वैल्यू असाइन हो रहा है। अगर इसको अगर हम ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं डॉट, अगर हम इसको ऐसे भी चाहें तो इसमें भी हम obj2 असाइन कर सकते हैं, लेकिन C++ में ये फैसिलिटी है कि आप सीधा प्लस लिख के आप असाइन कर सकते हैं। और हमारा फाइनली रिजल्ट आ गया 11 and 12. So that's it. If you have any kind of query related to my presentation, then please you may ask your query.